Welcome back students to social science class 7th standard lesson number 2, India climate and natural resources. In our previous class we already discussed about the climate of India and the major climate, winter, summer, monsoon, and how they occur in our country and what are the effect on the human life because of these different climate in our country. Now the next topic is resources. So what is the meaning of resources? The things which are very useful in our life and they satisfy our need. अगर हम सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलें तो जो चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिट है एंड वो हमारी नीड्स को पूरा करती है, दीज आर द रिसोर्सेज. Everything, this is the definition of resources. Everything available in our environment which can be stored and used based on its quality, capacity, utility and which becomes our heritage, जिनको कि हम रख सकते हैं, means as a heritage we can store them, can be termed as the resources. So this is important for the meaning of the resources. And other languages we can say that the resources are also those that can fulfill certain aims, जो कि हमारी aims को पूरा करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है. Aims, objectives and offer concrete solutions toward the problems, हमारी जो भी problems हैं उनको पूरा करने में हमारी help करता है. These are the resources. Anything that can be aimed at and used as accomplish human necessities also becomes a resources. जब वो human necessities को accomplish करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो वो हमारा resources बन जाता है. The people of the earlier time were not aware of the minerals available below the surface of the soil and hence could not utilize it. अब जो चीज़ें हमारी नेचर ने हमको दी है, दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर द रिसोर्सेज, लेकिन अगर हम उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग देम, और वो हमारी नीड्स को भी पूरा नहीं कर रही है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दीज रिसोर्सेज. अगर हम उन रिसोर्सेज के बारे में जानते ही नहीं हैं, हम उनको यूज़ करना नहीं जानते, तो हम उनको रिसोर्सेज का नाम नहीं दे सकते. दे आर नॉट रिसोर्सेज फॉर अस. इन द सेम वे, जब पुराने टाइम में भी लोग ये सब नहीं जानते थे कि क्या मिनरल्स होता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, इट मीन्स दे वर नॉट रिसोर्सेज दैट टाइम. अब साइंस के डेवलपमेंट की वजह से सब कुछ यूटिलाइज होने लगा है, सारे मिनरल्स यूटिलाइज होने लगे हैं. इट मीन्स नाउ दे आर रिसोर्स फॉर अस. That is why those minerals were not considered as a resources, but those resources are very useful for the modern man. Okay, in modern time we are using that resources, so they are resources for us. The things that help in man's welfare, जो चीज़ें हमारे लिए helpful होती है and satisfy the demand या फिर needs, they are called the resources. ये अलग अलग तरीके से इसमें definitions दे रखी है. So resources is clear. Now the natural resources. Natural resources are anything that exists naturally. जो चीज़ें हमको naturally मिलती है, जैसे कि air मिलती है, water मिलता है, land मिलता है, so these are the natural resources. उसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता, तो वो natural resources में आता है. is easily available and useful to men. There are 3 types of resources: water resource, mineral resource and the land resources. वाटर रिसोर्सेज, कैसे वाटर हमारे लिए यूज़फुल है. द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, सीज एट्सेट्रा. दे आर इन द डिफरेंट फॉर्म्स. द रिवर्स ऑफ द इंडिया आर डिवाइडेड इंटू टू और द बेसिस टू ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स. उसका ओरिजिन के हिसाब से वो 2 टाइप्स की हैं: रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एंड द रिवर्स ऑफ द साउथर्न इंडिया. Rivers of the northern India. The Sindhu, Ganga, Yamuna and the Brahmaputra are the rivers of the northern India. These are the northern rivers and they are perennial rivers. Perennial rivers means perennial in nature, means they are all time full of water because they are not depend on rain. They are not rain rivers. They are perennial rivers क्योंकि वो हिमालय से आती है, वो माउंटेन से आती है. द गंगा इज़ ऑल्सो नोन एज द भागीरथी. गंगा का दूसरा नाम क्या है? भगीरथी. देयर इज़ अ ट्रायंगुलर फर्टाइल प्लेन नियर द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा. रिवर गंगा, डेल्टा रिवर गंगा मीन्स वो प्लेस जहाँ पे गंगा रिवर
बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, दैट एरिया इज कॉल्ड डेल्टा ऑफ द रिवर, वो ट्रायंगुलर शेप में है. द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द मेजर वाटरवेज ऑफ इंडिया, और दीज टू रिवर्स आर मेनली यूज एज द वाटरवेज, क्योंकि वो प्लेन एरिया में फ्लो करती है, तो वहाँ पे वाटरवेज सबसे ईजी होता है ऑफ इंडिया एंड यूज फॉर द नेविगेशन पर्पस. बिसाइड्स दीज द झेलम, Chenab, Satluj, Ravi, and the Bees also flow in the north. Every year, devastating floods in the Koshi River, Koshi is in Bihar, okay, river in the state of Bihar destroy the lives and the properties of the people of that areas. बहुत बार क्या होता है, रिवर्स में फ्लड आने की वजह से बहुत सारा प्रॉपर्टी एंड लाइव्स का डिस्ट्रॉय मीन्स नुकसान भी हो जाता है. These all rivers you can see in this map. रिवर का मैप जो है you can see this map. Now these are गंगा river, ये देखो आप, गंगा, सतलुज, and some lakes are given here. Sambar lake and Chilka lake, and 1 and 2 more important are Koleru. Okay, so in this way you can see the map also, it's important. Rivers of the southern India. Now the rivers of the southern part of our country, rivers like Tapi, Narmada, Mahanadi flow down from the mountains in the central India. ये हमारे सेंट्रल इंडिया के रिवर्स है. द नर्मदा एंड द तापी फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, जो कि वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो करती है, नर्मदा एंड तापी फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शंस, एंड एमर्ज विद द अरेबियन सी, और कहाँ पे जाके एमर्ज हो जाती है, अरेबियन. तो वेस्ट डायरेक्शन ये रहा इधर से, दिस इज़ तापी, नर्मदा यहाँ से स्टार्ट होगी और बे ऑफ बंगाल में इमर्ज हो जाएगी. सो इस डायरेक्शन से स्टार्ट होकर इस डायरेक्शन में चली जाएगी. सो वी हैव टू लर्न द डायरेक्शन ऑल्सो, इसका डायरेक्शंस भी आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन सी रिवर कौन सी डायरेक्शन से फ्लो करती है. सो नर्मदा एंड तापी रिवर टुवर्ड्स द वेस्ट and merge with the Arabian Sea, while the Godavari, Krishna, Kaveri, Tungabhadra flow eastward and merge into Bay of Bengal, जो कि Bay of Bengal में जाके merge हो जाती है eastward से start होकर east direction से. These rivers flow through the uneven surface, और वो जब flow करती है the surface is not even. जैसे हम लोगों ने northern rivers की बात करी तो उसका surface नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, तो प्लेन सरफेस इज देयर, बट ये जो एरिया है पूरा का पूरा साउथ इंडिया, दिस इज़ माउंटेनियस एरिया, इट इज़ नॉट प्लेन एरिया. तो यहाँ का सरफेस होता है वो हिली टाइप है, नॉट इवन, अनइवन सरफेस ऑफ द ग्राउंड लाइक हाई एंड द स्लोपी रीजन्स, एंड देयरफॉर फॉर्म द वाटरफॉल्स, और उसकी वजह से ये रिवर क्या बनाती है, डिफरेंट वाटरफॉल्स बनाती है, इसीलिए साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा वाटरफॉल्स है. दैट इज़ वाई दीज रिवर्स आर नॉट यूज एज अ वाटरवेज, और इसीलिए इनको हम वाटरवेज से भी यूज़ नहीं कर सकते, आर नॉट यूज एज द वाटरवेज, क्योंकि वाटरवेज के लिए प्लेन एरिया चाहिए. दे आर यूज फॉर द इरीगेशन पर्पज एंड द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और दे आर मोस्टली यूज फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स बनाए जाते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है उसके ऊपर, एंड फॉर द इरीगेशन पर्पस ऑल्सो. सो सम रिवर्स आर गिवन हियर एंड द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स नेम्स गिवन एंड विच एरियाज आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम देम. रिवर्स नर्मदा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कोशी, महानदी एंड सतलुज आर द रिवर. नर्मदा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज नर्मदा प्रोजेक्ट. कृष्णा पे कौन सा प्रोजेक्ट है, नागार्जुना प्रोजेक्ट. तुंगभद्रा प्रोजेक्ट. कोशी प्रोजेक्ट. महानदी हीराकुंड प्रोजेक्ट. सतलुज भाखरा नागल डैम भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, भाखरा नागल डैम, अदरवाइज भाखरा नागल प्रोजेक्ट. एंड विच एरिया आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दीज डैम्स, जैसे नर्मदा है तो क्योंकि गुजरात में है तो इसका जो बेनिफिट है वो गुजरात को तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है. In the same way, Krishna River, Nagarjuna project, and it is in Andhra Pradesh, so Andhra Pradesh is getting benefit from it. And Tungabhadra and Koshi is on Bihar, Mahanadi, Orissa and Satluj, क्योंकि ये पंजाब में है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों को इसका बेनिफिट मिल रहा है. So this important you have to
read and learn. नेक्स्ट स्टेट्स आर गिवन जम्मू एंड कश्मीर एंड सम लेक्स आर गिवन कि कौन से स्टेट में कौन सी लेक्स है. जम्मू एंड कश्मीर डल एंड द वुलार लेक, ओके, एंड दिस इज फ्रेश वाटर लेक. आंध्र प्रदेश कोलेरू लेक, फ्रेश वाटर लेक. तमिलनाडु पुलिकेट, सॉल्टी लेक. ओडिशा चिल्का, सॉल्टी लेक. राजस्थान सांभर. You have to learn these names of the lakes and the states. Okay, there may be a map and question in your exams. Sardar Sarovar Dam. Because of this Sardar Sarovar Dam, one lake is there, the Sardar Sarovar Lake. तो डैम्स की वजह से भी कुछ लेक्स बनती है. वो है हिमाचल प्रदेश सतलुज. ओके, ये डैम है. इस डैम की वजह से बना गोविंद सागर लेक. एंड कृष्णा पे नागार्जुन सागर लेक. मांजरा निज़म सागर लेक. गुजरात नर्मदा से सरदार सरोवर लेक. ओके, इन द सेम वे चंबल गांधी सागर लेक. सो विच आर द लेक्स प्रोड्यूस बाय दीज रिवर्स. रिवर्स का ही एक छोटा पार्ट होता है जो कि लेक्स बन जाती है. इन्फॉर्मेशन अबाउट द नर्मदा प्रोजेक्ट. नर्मदा प्रोजेक्ट जो कि गुजरात का प्रोजेक्ट है. व्हाट अबाउट द some important things about this project. The Narmada project is the biggest multi-purpose project of Gujarat. In terms of the capacity, the main canal of the Narmada project is the biggest in the world. The length of the entire canal network is approximately 66,000 kilometers. It is the biggest in the world. 8,215 villages and the 135 cities of the Gujarat are provided drinking water through the Narmada project. Very important topic. 14 districts. Not only these villages, but under these villages some districts and talukas are there. Na? So 75 talukas and 3,360 villages of the Gujarat are getting irrigation facilities. इससे इरिगेशन मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, ड्रिंकिंग वाटर भी मिल रहा है. और इसका एरिया कितना है वो सब आपको याद रखना है. मिनरल रिसोर्सेज. नाउ द रिसोर्स मिनरल रिसोर्सेज. हमने ये सारे वाटर रिसोर्सेज पढ़े. सेकंड हमारा है मिनरल. बायोटिक एंड अबायोटिक मिनरल्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मिनरल हैविंग डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स ड्यू टू द इंटेंस हीट एंड द प्रेशर्स. जो मिनरल्स हैं हमको कहाँ से मिलते हैं? सरफेस के बीनीथ से मिलते हैं. ओके, एंड दिस ट्रेजर, ये जो खजाना है, ट्रोव ऑफ द मिनरल इज फॉर्म्ड इन द कोर ऑफ द अर्थ थ्रू द नेचुरल प्रोसेस लास्टिंग फॉर द थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स. तो बहुत हज़ारों सालों के प्रोसेस के बाद ये मिनरल्स प्रिपेयर होते हैं. चाहे वो कोल है, चाहे आयरन है, एंड सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर वी कैन फाइंड इन अंडर द अर्थ surface. Minerals below the earth are not found in their pure forms. There are many impurities present due to which they are called the ores. और जो impurities होती है उसको हम ores बोलते हैं. जैसे ही हमने आयरन निकाला अर्थ के अंदर से, that is not in the pure form. वो प्योर आयरन नहीं है, उसको हम आयरन ores बोलेंगे. ओके, उसके बाद उसको प्योरीफाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर. यस, एग्जाम्पल इज आयरन ओर. ओनली आफ्टर द रिफाइनिंग ऑफ द ओर्स, फिर उसका ओर्स निकाला जाता है, उसका इम्प्योरिटीज़ दूर किया जाएगा, एंड वी गेट मिनरल्स इन देयर प्योर फॉर्म. दीज मिनरल्स फॉर्म द foundations of the economic might and the prosperity of the country, and it is used for our country's prosperity. Minerals can be divided into three types: metallic minerals, non-metallic minerals, and the power generating minerals. Metallic is important topic. Minerals can be divided into three types. These three are very important: raw iron, copper, gold, zinc, tin, nickel, mercury and platinum. These are the metallic, जो कि metal के form में है, hard. And non-metallic, diamond, ruby, limestone, these all are the in stone and the ऐसा stone form में है. So dolomite, bauxite, phosphor, gypsum, acic, calcite, silica, graphite, potash. सो दीज आर द नॉन मेटलिक, जो कि मेटल्स नहीं है, कुछ पत्थर है, कुछ डायमंड्स है, इस तरह का है. पावर जनरेशन, जिसे कि हम पावर जनरेट करते हैं, जैसे कोल. तो कोल से हमको पावर एनर्जी मिलती है. सो दीज आर द पावर जनरेटिंग मिनरल्स. कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, दीज आर द पावर जनरेटिंग मिनरल्स. Minerals
they are found in the different states. In our country, coal is found in Jharkhand, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Goa, Orissa, Tamil Nadu, Karnataka, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. It's very important topic. The all the minerals and their state you have to read, and then where are these मिनरल्स फाइंड इन द विच एरिया इन आर कंट्री. अगर हम लाइमस्टोन की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश. और अगर गोल्ड के बारे में पूछा जाता है देन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश ओनली. सो यू हैव टू रीड एंड लर्न दीज ऑल द स्टेट्स. यूजिंग ऑफ द मिनरल मैगनीज इज यूज इन द केमिकल इंडस्ट्रीज. मैगनीज कहाँ पे यूज होता है? केमिकल इंडस्ट्री में. एंड पेस्टिसाइड्स एंड ग्लास एंड द varnish and the printing industries. Copper is used in the electric wire materials, colored glass, coin and printing industries. Bauxite is used in electric materials, colors, aeroplanes, purifications of the kerosene and making of the cement. Mica is used in making radio, telephone, aeroplane, gramophone, soundproof curtains. And fluorspar is used in the mineral melting industries, plastic industries, hydrochloric acid and the making things from the china clay. So these are the uses of the minerals. And next means the land resources. We will discuss in the next video. Thank you.